کلام کو سنیے گا چند لمحات کے لیے. خدا کا کلام آج کی شام ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے. کبھی کبھی ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اور وہ چیزیں جن چیزوں کو ہم نہیں کرتے یا وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کرنے والی نہیں ہے، کلام کہتا ہے تو ان سے بیزار نہ ہو، یعنی تیرا دل ان سے تنگ نہ آئے. جیسے آج کے دن لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح سے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے بیزار ہو رہے ہیں، اس سے تنگ ہو رہے ہیں. اب کلام کہتا ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، یعنی ہمیں خدا منع کر رہا ہے اور کہتا ہے بدی کرنے والوں پر رش بھی نہ کر. پھر آگے دوسری آیت کے اندر اس کا رزلٹ لکھا ہے. پڑھیں بھائی کیا رزلٹ ہے اس کا؟ کہ جو بدی کر رہے ہیں، جو بد کردار ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ دوسری آیت پڑھیں. کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. کون؟ جو بدی کرتے ہیں. کون؟ جو بد کردار ہیں. ان کے رزلٹ کے بارے میں پہلی آیت میں جو لوگ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دوسری آیت میں ان کا رزلٹ، اس کے عوض جو کچھ ان کی زندگی میں ہونا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ گھاس کی مانند، گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے. اور تیسری آیت میں ہمیں خداوند کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی تیسری آیت کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ خداوند. تیرا کام کیا ہے؟ ان سے بیزار ہونا نہیں، ان سے تنگ ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تیرا ایک کام ہے، تو اس کام میں لگ جا، تو وہ کام کر. اور وہ کام کیا ہے؟ کہتا ہے خداوند پر توکل کر. خداوند پر توکل کر اور آگے کیا کر؟ اور نیکی کر. ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر، ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر تیرا ایک خاص کام ہے کہ تو سب سے پہلے خداوند پر توکل کر اور پھر نیکی کر. ہاللیلویا. کیا کر؟ نیکی کر. اور یہ آدھی آیت ہے. اگلی آیت کا اگلا حصہ کیا کہتا ہے؟ ملک میں آباد رہ، ملک پاکستان میں آباد رہ. یعنی ملک میں رہنے کے لیے کہتے ہیں خداوند پر توکل بھی کر اور نیکی بھی کر. اور جو لوگ غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو دیکھ کر بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایویں کام کاج نہیں ہو، انرجی لگے. کلام کہتے ہیں تو کیا کر؟ توکل کر، خداوند پر توکل کر، نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے اس کی وفاداری سے ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. ہاللیلویا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند میں مسرور رہ. خداوند میں مسرور رہ. یہ آج کی شام ہمارے لیے کلام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے خداوند پر توکل کرنا، پھر کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی. اس توکل اور نیکی کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس ملک میں آباد رہنا ہے. اور کیسے آباد رہنا ہے؟ جب ہم اپنے گھر کو آباد کر رہے ہوں، اپنے گھر کے کام کر رہے ہوں، اپنے گھر کو چلا رہے ہوں، تو کلام کہتا ہے کیسے رہنا ہے؟ خداوند میں مسرور رہ. مصروف لفظ نہیں ہے، یہ مسرور ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ مصروف بول دیتے ہیں، لیکن اس لفظ کے جو صحیح لفظ ہے وہ مسرور ہے. مطلب خداوند جو کچھ بھی تو کرے خداوند کے لیے کر. خداوند میں مسرور رہ. اور جیسے دوسری آیت کے اندر ہم نے شریروں کا انجام دیکھا، ہم نے بدکرداروں کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے، اسی طرح جو خداوند پر توکل کرے گا، جو نیکی کرے گا، جو
उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे शरीर के लिए कुछ ना कुछ होगा, इसी तरह जो नेक है, जो रास्तबाज है, जो खुदा पर तवक्कल करके बैठा है, जो खुदावंद में मसरूर है, उसके लिए भी खुदावंद के कलाम में लिखा, उसके लिए भी कुछ है। उसके लिए क्या है भाई, पढ़िए। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की, सबकी नहीं, उन बदकिरदारों की नहीं, उन शरीरों की नहीं, उनकी नहीं जिनके काम ठीक नहीं, उनकी नहीं जिनकी तरफ देखकर या जिनके कामों को देखकर तेरा दिल बेजार होता है। कहता है उनकी नहीं, बल्कि क्या होगा, जो मसरूर है खुदावंद में, जो खुदावंद में मसरूर है, जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, जो नेकी कर रहा है। कहता है तेरे दिल की, वो कौन, खुदावंद जिस पर तेरा तवक्कल है, जिसके डर और खौफ में तू जिंदगी बसर कर रहा है, उसकी बात हो रही है। कहता है उस पर तवक्कल करने वाले की बात हो रही है कि वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। उनका अंजाम कैसा है, वो घास की तरह काट दिए जाएंगे, लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं, नेकी करते हैं, खुदावंद में मसरूर रहते हैं, उसकी बात हो रही है कि उसके लिए भी अजर है। वो क्या अजर है, जो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जो कुछ तेरे दिल में है, जो कुछ तू करना चाहता है, जो कुछ तू हासिल करना चाहता है, जो कुछ तेरी डिजायर्स हैं, कलाम कहता है वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा, पूरी करेगा। क्यों पूरी करेगा, क्योंकि तेरा तवक्कल खुदा। क्यों पूरी करेगा, क्योंकि तू नेकी करता है। क्यों पूरी करेगा, क्योंकि तू खुदावंद पर तवक्कल रखकर बैठा है और साथ साथ कुछ कर भी रहा है। आगे भी कुछ लिखा है, 5वीं आयत, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। हालेलुया। अपनी राह क्या कर, खुदावंद पर छोड़ दे। यानी उस शख्स के बारे में जिसको कहा जा रहा है कि खुदावंद में मसरूर है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली क्या, कि बदकिरदारों से या जिनके काम तुझे अच्छे नहीं लगते उससे क्या नहीं होना, बेजार नहीं होना। बेजार भी नहीं होना तो उस पर रश्क भी नहीं करना, यानी उसको शाबाश भी नहीं देनी, उसके कामों पर खुश भी नहीं होना और बेजार भी नहीं होना। करना क्या है, खुदावंद पर तवक्कल। रहना कैसे है, खुदावंद में मसरूर। करना क्या है, नेकी। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, तेरे दिल की मुरादें वो पूरी कर देंगे। और कहता है खुदावंद अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। और आगे क्या लिखा है, वही सब कुछ करेगा। कोई एक काम नहीं, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। वही सब कुछ करेगा, जो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब कुछ करे। तेरे करने वाले काम ऊपर बता दिया गया। बेजार नहीं होना, रश्क नहीं करना किसी के गलत कामों पर, बल्कि तूने अपने दिल को हमेशा खुदावंद के साथ जोड़े रखना, तब जाके वो तेरी मुरादों को भी पूरा करेगा। और कलाम कहता है वो सब करेगा, वो सब कुछ करेगा। कौन, खुदावंद जिस पर मेरा और आपका तवक्कल है, जिसके आगे आप झुकते मुबारक कहते हैं, जिसके लिए आप नारे लगाते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपने साथ इस मुख्तसर कलाम को, मैसेज को लेकर जाएं। जब भी आपका दिल दुनिया में रहते हो किसी ऐसी चीज को देखकर, किसी ऐसे काम को देखकर बेजार हो, तो आपने हमेशा इस कलाम को याद रखना है कि खुदावंद ने मुझे मना किया है, मैं बेजार नहीं होगा। मैं अपना ध्यान खुदावंद पर लगाऊं, मैं खुदावंद में मसरूर रहूं। मैं किसी के गलत काम पर रश्क भी नहीं करूंगा और किसी के गलत काम से बेजार भी नहीं होगा, बल्कि अपना दिल खुदावंद की तरफ रखूंगा। अपनी राहों को उस पर मैं छोड़ूंगा, अपने आप को खुदावंद में मसरूर रखूंगा, ताकि वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करे। याद रखें, जो कुछ भी आप करते हैं वो खुदा के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, या खुदा के साथ रहकर आप कर रहे हो, दोनों का रिजल्ट आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन आता है, आपके घर में आता है, आपकी जिंदगी में
में आता है, आपकी सोचों में आता है, आपके ख्यालों में आता है, आपके घर के अंदर उसका असर होता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं खुदा के साथ या खुदा से दूर, दोनों सूरतों में जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वो असर, उसका रिजल्ट और उसका नतीजा आपकी जिंदगी में आता है। थैंक यू लॉर्ड। आए अपने आप को तैयार करें खुदावन में मसरूर रहने के लिए। अगर आपके दिल में बहुत सी मुरादें हैं, अगर आपके दिल में बहुत सी डिजायर्स हैं, अगर आपके दिल के अंदर बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुदावन से लेना चाहते हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है, एक ही काम है करने वाला कि हम खुदावन पर तवक्कल रखें, उसमें मसरूर रहें। जैसा वो कहता है, जैसा वो चाहता है वैसा करते जाएं। और कलाम कहता है वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा और वो पूरा करने की कुदरत रखता है। और एंड में हमने सीखा कि वो सब कुछ करेगा, कोई एक काम नहीं बल्कि सब कुछ। और करेगा कौन? वही जिस पर आपका तवक्कल है, वही जिसकी हजूरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, वही जिसके लिए आप सफर करके आए हैं, वही जिसके लिए आपने वक्त निकाला है, वही जिसके लिए आपने अपने घर के कामों को छोड़ा है, वही जिसके लिए आप जब घर से निकले थे तो आपने पहला कदम उठाया था और आपके दिल में खुदावन था, आपके दिल में ये सजदा था, आपके दिल में ये वर्शिप थी, आपके दिल के अंदर ये बात थी कि आज शाम मैं खुदावन की हजूरी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ताकि उसकी वर्शिप करूँ, उसकी सताइश करूँ, उसकी बंदगी करो। तो मेरी बहन, मेरे भाई, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे रहा है, खुदावन आपकी जिंदगी में कुदरत को जारी कर रहा है, वो आपके दिल की मुरादों को जानता है। आए अपने दिल की मुरादों को याद करें। अगर आप खुदावन से कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, खुदावन में मसरूर हो जाए, इबादत करें, बंदगी करें, खुदावन की हजूरी में रहें, उस पर तवक्कल करें। वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद यहोवा, खुदा आसमानी बाप,